has been very long. We spoke. I did video for you people. The reason is like I was going through a testing phase of life, and I wanted to record only those things which I can do, because what I can do, anybody can do. So since last 3 months, I was on leave without pay, and I am the only person, only earning person. I'm the only person who is taking care, responsible for finance, shoppings, and with me, Vasu, and me too. Means your parents. So they're still kids. They're still studying. So it was a difficult phase. The phase is not still over yet, but almost through it. So I told you in my first video that blissful living is staying happy, staying healthy, and being grateful. So I thought, let me practice that. So I have practiced that during these 3 months. I tried not to lose my temper. I stayed calm. I stayed blissful, and I did whatever I can do. So let me share you how I managed to do this, and how me, Vasu, and me too as a team, we have grown up, and we are coming out of this phase, difficult phase. Yes, there were people who have been great help for me, my friends, and my extended family was always there supporting me, but then everybody have a limit, right? And we cannot bother anybody or expect like a lot of things which is not possible for anybody. So if I was seeking help from people whom I was expecting that they will help me, but nobody did that. And believe me, I don't have any regret, or I don't feel bad about it, but I knew the limit. I came to know about their limits, their limitations. So it was okay with me. It should be okay with everybody, because everybody has their own limitations, and everybody have their own what do you say, responsibilities to take care of. So self-responsibility is the first responsibility, as I always tell you. So so it's okay with me, but yes, during this pandemic, it was very, very obvious for me that people, those who have very big pockets, may not have that big heart. Those who have teeny tiny pockets have always very big heart, and they supported each other and did whatever they can do, and for each other. And I was also blessed. I am also blessed that I have people in my life who has been supporting me on coming out of this situation, and staying calm and blissful and positive during this period was very simple. It was like I did first thing, I was doing what I should be doing. I did my homework and everything, and then I forget about the situation, because I did my best, whatever is in my capacity, and because everything does not happen overnight. Everything needs time, and at times, if the other person, anybody in front of you, if you have an expectation from that person, and that person doesn't turn out the way you have expected, don't feel bad, because
maybe he or she might be in a situation or where they are not able to support you, right? So it's their this thing. If during this period, one thing I realized and I practiced, and it became my habit now. If anybody is not treating you the way you think you deserve to be, doesn't define you. अगर कोई आपको उस तरीके से नहीं ट्रीट करता है जैसे आप चाहते हो, वो सिचुएशन, वो जेस्चर उस पर्सन का आपको डिफाइन नहीं करता है. वो जेस्चर, दैट सिचुएशन और द बिहेवियर ऑफ दैट अदर पर्सन डिफाइंस देम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऊपर कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, या कोई आपको कुछ गलत बोल रहा है, तो वो आपको डिफाइन नहीं कर रहा है, वो आपके बारे में नहीं बता रहा है, वो अपने बारे में बता रहा है कि वो कितना प्रॉब्लम में है, या वो क्या सोचता है, उसकी सोच क्या है, वो आपको डिफाइन नहीं करता है. तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, अगर कोई आपको कुछ गलत बोल देता है, या मतलब आपको लगता है कि आप गलत बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहा है, पर उसको लगता है कि वो सही बोल रहा है, ठीक है. तो अगर आपको लगता है कि अगर आपको कोई गलत बोल रहा है, तो हम क्या करते हैं कि वो जो सोच रहा है, वो सोच हम अपनी सोच बना लेते हैं, और फिर हम उस सोच को सोच के उसको और बड़ा बना लेते हैं. वो तो बोल के चला गया, पर आप उसी सोच में डूब के और बहुत सारी चीज़ें अपने लिए क्रिएट कर देते हो, जिससे आपका मेंटल पीस आपका ख़राब हो जाता है. आप जब ऑब्वियसली परेशान हो, तो सबसे पहले इंसान जो गलत करता है वो ये है कि हम अपने लोगों को, हमारे पास जो हैं, उनमें हम वो एनर्जी बांट देते हैं अननोइंगली. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे ऑफिस में कुछ हो गया, ठीक है, और मेरे बच्चे घर पे हैं, और मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं. मेरे ऑफिस में कुछ हुआ, मुझे किस बॉस ने कुछ बोल दिया, या मुझे किसी ने कुछ बोल दिया कि आप अच्छे नहीं हो, आप काम के लायक नहीं हो, या कुछ भी, ठीक है. वो फीलिंग मैं अपने दिमाग में लेकर आई हूँ और घर के अंदर घुसी हूँ. तो बच्चा मेरे से कुछ बोल रहा है कि मम्मी ये चाहिए, वो कुछ चाहिए. सो मैं वो फीलिंग को लेके इस बच्चे के ऊपर जवाब दूंगी, तो वो फीलिंग मिक्स करके जवाब दूंगी. दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज दैट पर्सन, आपका बच्चा, वो डिज़र्व नहीं करता है, राइट. सो वो चीज़ें मीन, इफ समबडी इज शाउटिंग एट यू, that person is defining himself, not you. So don't take any garbage. किसी से भी कुछ गार्बेज मत लो. उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको वापस शाउट करो, कोई बात नहीं, लेट इट, उसको करने दो, बिकॉज वो परेशानी में है, उसको निकालने दो, बट वो आप लो मत. दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ऑफ ब्लिसफुल लिविंग. एंड लेट मी सम इट अप. फर्स्ट, in a difficult situation, you should do whatever you can. ठीक है. उसके बाद में उस सिचुएशन के बारे में सोचते ही मत रहो. आपने कर लिया, जैसे स्कूल से होमवर्क मिलता है, तो आप होमवर्क कर लेते हो, फिर नोटबुक बंद करते हो, रख देते हो, और आप खुश होकर खेलने लग जाते हो, राइट. उस तरीके से इफ़ यू आर इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, आपको जो करना है उस सिचुएशन में द बेस्ट आपको पॉसिबल लगता है वो आप करो, और उसको बंद करके रख दो. और रेस्ट 24 घंटे हैं, 2 घंटे 3 घंटे जो भी आपको करना है आप करके आप उसको हटा के रख दो. फिर नॉर्मल लाइफ रहो, खुश रहो, गाना सुनो, खाना बनाओ, घूमने जाओ, फ्रेंड से मिलो, बात करो, जो वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू डू. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन इफ़ यू आर सीकिंग आउट फॉर हेल्प, किसी से आप हेल्प मांगने जा रहे हो और वो मना कर देता है, कोई बात नहीं, वो मना कर देता है क्योंकि उसकी कैपेसिटी में नहीं है. सूरज भी सुबह 6 बजे उठता है, बेचारा शाम को 5 बजे सो जाता है, मतलब वो डूब जाता है, राइट.
उसका भी उतना ही कैपेसिटी है। सूरज 24 घंटा चाहे नहीं, आज अर्थ में बहुत ठंड है तो मैं आज यहीं खड़ा रहूँगा, ऐसा नहीं होता है ना। सो एवरीबडी हैज़ देयर कैपेसिटी। सो अगर कोई आप किसी को किसी से हेल्प लेने जा रहे हैं और आपको नहीं वो हेल्प कर पा रहा है, तो डोंट फील बैड, इट्स ओके, एटलीस्ट यू रीच्ड आउट। सबसे मेन चीज़ मैंने सीखी इस पेंडेमिक में, टू आस्क फॉर हेल्प। सो आई वॉज नॉट अ गुड रिसीवर, मैंने कभी किसी से हेल्प नहीं ली। सो आई वॉज वेरी बैड एट सीकिंग हेल्प। आई थिंक आई एम स्टिल वेरी बैड एट सीकिंग हेल्प। आई एम अ गुड गिवर, आई एम अ गुड लाइक मैं देती हूँ लोगों को जो मेरी कैपेसिटी में है, और मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, ऑल दोज थिंग्स आर गुड। बट अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ तो मुझे बताना चाहिए, मुझे बताना होता है कि मेरे अपनों को कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, क्योंकि हर कोई ऐसे रियलाइज़ नहीं कर पाता है कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, राइट। सो दीज 3 थिंग्स आई हैव लर्नड ड्यूरिंग दिस पीरियड, and there's a lot more, and I'll keep on recording and I'll keep on sharing it with you people, and I love you kids. Stay healthy, stay safe, and main thing for being happy is happiness starts from our thought. So think positive, think good for everybody. It's very easy thinking good for everybody. And भगवान से हमेशा ऑनेस्टली प्रेयर करो। मैं हमेशा बहुत ऑनेस्टली प्रेयर करती हूँ, भगवान सबका भला करो, मेरा थोड़ा सा ज़्यादा कर देना। थैंक यू, लव यू।